लस्ट बद्दल जेव्हा डिस्कशन होईल खास करून, दॅट विल लास्ट पार्ट. सो एनिवेज, सो टू बिगिन विथ, जसं फर्स्ट चॅप्टर आपण परपोर्ट स्टार्ट करत होतो. टेक्स्ट वन, परपोर्ट. The Supreme Personality of God Krishna has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter, with a view to delivering his intimate friend Arjun from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended, Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place and become fully absorbed, fully Krishna conscious by chanting the holy names of the Lord. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy names of Krishna in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from innocent public. So one should not think की ठीक आहे मला कुठेतरी एकटं जायचं आहे, एकटं जाऊन जप करायचा आहे ना. That is not recommended here by Srila Prabhupada purport. We go to Dham with a group of devotees. We never go to the Dham alone, just for sightseeing, or we go to Dham when we have service. We don't go otherwise just for the घूमने फिरने के लिए जाते हैं हम लोग. जाते हैं तो कुछ वहां पे भक्ति करने के लिए जाते हैं. तो इसलिए Prabhupada talks about training, how training in Krishna consciousness is very important. Arjun also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life, and the practice of penance and austerity at a secular place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. हम काफी बार भक्ति को एक्सक्यूज करके we use Krishna consciousness as an excuse for not doing our activities, our prescribed duties खास करके. So don't use Krishna consciousness as an excuse for your prescribed duties. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to be his best what should be the best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga or work in Krishna consciousness in this third chapter. That's why in this chapter, Krishna will be talking about how one has to work, and one should not prematurely give up his work. है ना, प्रीमेच्योरली छोड़ देनी नहीं चाहिए. इसके ऊपर कृष्णा चर्चा करेंगे. Text number 2. Now in this text number 2, Krishna will talk about how actually Arjuna is confused. Now he's looking for a solace from Krishna. He wants a solution from Krishna. He wants a equivocal instruction. एक चीज बोलो, ये दो चीज मत बोलो. मैं सिलेक्ट कर नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए आप मुझे हेल्प करो. मुझे क्या एक चीज करना चाहिए. मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा था, purport पढ़ेंगे. In the previous chapter, as a prelude to Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, controlling of the senses by intelligence, work without fruitive desires, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. तो उसमें ऐसा उस सीक्वेंस नहीं था, जो जैसा कृष्ण बोलते गए वो आते गए. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjun therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjun by any jugglery of words, Arjun could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. And that's why actually जैसे ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्यों हम सबके लिए. दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट योगा लैडर. योगा लैडर मतलब क्या होता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति का प्रगति होता है योग में. हाउ वन अ नॉन डिवोटी, एक कर्मी, कैसे वो कर्मकांड पे जाता है, कर्मकांड से कर्मयोग पे जाता है, फिर निष्काम कर्मयोग पे जाता है. ऐसे करते करते हाउ ही गोज टू भक्ति योगा. स्टेप बाय स्टेप उसका प्रगति कैसे होता है. दैट विल बी डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर एज वी गो अहेड. And that's why now text number 3 onwards, text number 3 से लेके तो text number 9 तक, this section talks about निष्काम कर्म योग. So in the निष्काम कर्म योग में, so Krishna is going to discuss that how liberation or bondage is not determined by one's activities, but by one's consciousness in performing those activities. है ना. So it's not that
what activity one is doing, but with what consciousness one is doing, Krishna is going to focus, tell about that. So renunciation is not giving up the activities, but it is a giving up the attachment to the fruit of the activity. रिनंसिएशन का मतलब क्या है? काफी रिनंसिएशन का मतलब क्या था, हमको लगता है ठीक है भाई, हमको लगता है कि कर्म संन्यास मतलब क्या, सारे एक्टिविटीज को व्यक्ति गिव अप कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठ रहा है, बस एक जगह पे बैठ रहा है, नो इनएक्टिव हो रहा है. दैट्स नॉट अबाउट, दैट्स नॉट अबाउट renunciation is. So that's why saying renunciation is not giving up the activities, but it is giving up the attachment to the fruits of the activity. कि भाई मुझे इससे ऐसा मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे से ऐसा होना चाहिए, नहीं. So renunciation of activity without necessary training, knowledge and purification will lead to destruction on the path of spiritual advancement. अगर कोई व्यक्ति रिनाउंस कर रहा है ना, कैसे? विदाउट नेसेसरी ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज एंड विदाउट प्यूरिफिकेशन, तो इससे क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन हो सकता है व्यक्ति के जीवन में. आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? डज इट मेक सेंस? है ना? तो इसका मतलब क्या है, जैसे कभी कभी भक्त लोग हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें ऐसा मूड में आके ज्वाइन नहीं करना चाहिए. अभी उनको मूड आ गया, अचानक से उनको लग रहा है भाई इच्छा हो गया कि सब कुछ छोड़ देना, ये सारा झंझट है, झंझट से मैं पड़ना नहीं. नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो कुछ समय बाद वो, उसको क्या होगा? विल नॉट बी हैप्पी इन ब्रह्मचर्य आश्रम, नाइदर इन द गृहस्थ आश्रम सब्सिक्वेंटली. इसलिए जो भी रिनंसिएशन हमको करना है, वो कैसे करना है? ट्रेनिंग लेके, नॉलेज के आधार पे और शुद्धिकरण होने के बाद. So without prescribed duties, an unfulfilled desire for activity will lead to premature renunciate to sinful action. अगर किसी व्यक्ति ने प्री मैच्योरली ज्वाइन कर लिया, प्री मैच्योरली मतलब छोड़ दिया चीजों को, तो ऐसे केस में क्या होगा? इट विल लीड फोर्स हिम टू डू मोर सिंफुल एक्शंस. प्री मैच्योर छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे करके इसमें चर्चा आगे करके कृष्ण करने वाले हैं. सुना, कमिंग टू टेक्स्ट नंबर 3.3. तो इसमें कृष्णा इज आंसरिंग, ही इज गोइंग टू स्टार्ट आंसरिंग द डायलेमा ऑफ अर्जुन, वेर इज सेइंग वेदर आप भाई मुझे बोलो रिनंसिएशन करना है कि वर्क करना है, सांख्य योग बोलो या फिर कर्म योग बोलो, है ना? मुझे जो कंफ्यूजन हो रहा है वो दूर करो. एज आई वाज टेलिंग यू इन 2.39, 2.39 जो श्लोक था, मैंने 2.49 का पूरा डिस्कस किया था, इसमें दूरेण मैंने बोला था, उसी के साथ 2.39 जो श्लोक है ना, 2.39 में वेर कृष्णा ही विल टॉक अबाउट, सांख्य योग, है ना? तो उसमें सांख्य योग का बात करते हैं 2.39 में, और कर्म योग या फिर बुद्धि योग का बात करते हैं. टू थिंग्स, सांख्य योग और एनालिटिकल स्टडी बेस्ड ऑन ज्ञान पे आधारित है. कर्म योग या फिर बुद्धि योग, जो जिसमें एक्टिविटीज या फिर कर्म इन्वॉल्व है. समझने में क्या बोल रहा है आप लोगों को? 2.39 जो श्लोक है भगवत गीता का, जो हमने पहले देख चुके हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसमें कृष्ण सांख्य योग का बात करते हैं और कर्म योग का बात करते हैं. सांख्य योग आधार क्या है? ज्ञान. और कर्मयोग का या फिर बुद्धियों का आधार क्या है? कर्म, एक्टिविटीज, है ना? तो कैसे अभी भाई, तो इसमें लिखा है कि बट द राइट अंडरस्टैंडिंग इज दैट कर्म स्टेज एंड ज्ञान स्टेज और टू रंग्स ऑफ द सेम योगा लैडर. कोई व्यक्ति कर्म स्टेज पे है या ज्ञान स्टेज पे है, वो किस स्टेज पे है, ये समझने के लिए उसको मतलब ये उसको कैसे उसको समझ पाएगा? जब उसको निष्ठा है और उसके निष्ठा पे आधारित है ना? इसीलिए टेक्स्ट 3 जब पढ़ रहे हैं, उसमें कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड निष्ठा. मिला क्या वर्ड आपको? निष्ठा. श्री भगवान वाच लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, दिखा निष्ठा. तो निष्ठा वर्ड क्यों आया है? निष्ठा वर्ड इसीलिए आया है यहाँ पे कि भाई कर्म स्टेज और ज्ञान स्टेज को जो डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए, उसकी निष्ठा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. निष्ठा का मतलब क्या है? इट मीन्स प्यूरिटी ऑफ द हार्ट और लेवल ऑफ फेथ. व्यक्ति का विश्वास का क्या स्तर है वो दिखाता है निष्ठा, है ना? तो इसीलिए आप देखेंगे लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम.
है ना। मया नघ, मया नघ शब्द इसमें यूज हो गया कि भाई अनघ मतलब क्या है, ओ सिनलेस, पाप से विरहित है अर्जुन, इसमें कहा गया इसमें। तो निष्ठा तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति पाप से फ्री होता है ना। तो इसलिए that यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया, ओ सिनलेस अर्जुन, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand by empirical knowledge, empirical philosophical speculation, जिसको बोलते हैं हम लोग सांख्य योग, जिसको बोलते हैं हम लोग सांख्य योग, और दूसरे जो है वो है एंड अदर्स बाय डिवोशन सर्विस, दैट इज भक्ति योग या फिर बुद्धि योग। दो टाइप के लोग आपको मिलते हैं, ऐसे कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। देखो परपोर्ट में पढ़ो, आप पढ़ो जोर से परपोर्ट, प्रभुपाद उसी को कोट कर रहे हैं परपोर्ट में भी, 2.39 को पढ़ो। दादा गोकुलन को थोड़ा माइक पे पढ़ो। 2.39 ना। परपोर्ट पढ़ो, 3.3 का परपोर्ट, 3.3 का परपोर्ट पढ़ो। In the second chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedures, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga, or the analytical study of the nature of spirit and matter, is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principle of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bonds of action, and furthermore, there is no flaw in the process. The same principle is more clearly explained in the 61st verse, that this Bhakti Yoga is to be depend entirely on the Supreme, or more specifically on Krishna. And in this way, all the senses can be brought under control very easily. Therefore, both the yogas are interdependent, as religion and philosophy. Religion without philosophy is sentiment, or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is a mental speculation. The ये प्रोपात ultimate का होना तो goal, बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा अभी, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट प्रोपात का है। हाँ। while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincerely searching about this absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. The whole process is to understand the real position of the self in real relation to the super self. The indirect process of philosophical speculation by which gradually one may come to point of Krishna consciousness, and the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses by a philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. यस, तो ये हमको अगर कंपैरिजन करना है अभी यहाँ पे बिटवीन सांख्य योग और बुद्धि योग, है ना। मेरे पास एक चार्ट है जो कि होस्ट है, मुझे थोड़ा अलाउ कर दीजिए, मैं आपको शेयर करके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हाँ थैंक यू, शेयरिंग का अलाउ कर दिया उन्होंने। टू शो यू दिस, ये मैंने एक चार्ट एक बुक में देखा था, आपको शायद इससे हेल्प हो जाएगी। I had a question. Yeah, let's see the chart, then we'll come to the question. दिख रहा है सबको ये विजिबल? तो ये समरी है आपके ये 3.3 परपोर्ट का। तो सांख्य योग, हाँ, तो सांख्य योग या बोल सकते हैं यहाँ पे भक्ति योग, सांख्य योग एंड भक्ति योग के बीच में कंपैरिजन दिया है कि जैसे सांख्य योग इज इनडायरेक्ट पाथ, बुद्धि योग इज डायरेक्ट पाथ,
है ना, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग द लेवल ऑफ आवर एक्टिविटी और कर्मा फॉर पर्पस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज बुद्धि योग। बट सांख्य योग आपको इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है उसमें। इन सांख्य योग डिपेंडेंस ऑन पर्सनल एंडेवर इज मोर। को स्टोरी पता है ना, वो एक कैट, रैट और किटन की। तो जब कैट रैट को, नहीं सॉरी कैट रैट का नहीं, इसमें आएगा बंदर का और कैट का आएगा स्टोरी। जो बंदर होता है, जो मदर मंकी, तो बेबी मंकी को मदर को पकड़ के रखना पड़ता है, तो बेबी का एंडेवर होता है उसमें। तो डिपेंडेंस ऑन पर्सनल एंडेवर मतलब सांख्य योग में ऐसा होता है। तो फॉलोअर को अपने जिसको फॉलो कर रहा है उसको उसको पकड़ के रखना पड़ता है, दैट इज डिपेंडेंस ऑन पर्सनल एंडेवर। इसमें एग्जाम्पल हमने एक मंकी का देखा। और इसमें क्या बुद्धि योग में क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन कृष्णाज मर्सी, भगवान की कृपा पे आधारित रहता है, आश्रित रहता है, और फिर इसलिए वो इजी और बेटर रहता है कंपेरेटिवली। एग्जाम्पल दिया जाता है एक किटन का। उसे किटन को उसकी मदर अपने मुंह मुंह में पकड़ के लेके जाती है, और किटन को उससे कभी टेंशन नहीं होता है। वो किटन को चिंता नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मेरा केयर कौन लेगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा। वो सारा एंग्जाइटी किसका होता है, मदर का होता है, मदर कैट का होता है। वैसे यहाँ पे भगवान पे डिपेंडेंस होने के कारण दे आर नॉट वरीड कि भाई मेरा मेरा सारा केयर कैसे होगा, मेरा कौन देखभाल कौन करेगा। तो उनको पता है भगवान मेरे लिए सारा चीज कर देंगे। So the dependence is on Krishna's mercy. Then सांख्य में क्या है, they are unsure about success. सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, डाउटफुल है, डाउट है बहुत सारा। अगर मैं गलती से फेल हो गया तो पूरा डायरेक्ट नीचे खींचोगे। बट इन द केस ऑफ भक्ति होगा, there is surety of success because the strength is given by mercy of Krishna and Vaishnavas. Thus one is easily relieved from the bonds of action and there is no flaw in the process of बुद्धि होगा या भक्ति होगा। ये इसका स्पेशलिटी है बुद्धि होगा। और इसका चौथा जो पॉइंट है, फॉर सांख्य योगा यू रिक्वायर इनिशियल प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन है तो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। पर फॉर बुद्धि होगा वो बोलते हैं एंड्स एंड मीन्स आर द सेम। मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज अ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। उसको अलग से कुछ प्यूरिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो खुद ही इसमें प्यूरिफाई हो जाता है प्रोसेस जस्ट फॉलो करने से। So does that make sense? मैं बोल रहा आप लोगों से, कृष्णा प्रभु नहीं कर रहा है सेंस? राधा गोकुलानंद प्रभु कळालं प्रभूजी, कळालं. तू नाही म्हटलं म्हणून विचारलं तुला बरं. ते हा होता माझा. ठीक है, so let's move to the next श्लोका, text number 4. Ji, my question. Yes, Rishikesh, question. Ji, here it is written the first line itself of this purport, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Bhakti Yoga. So Buddhi Yoga. So is Karma Yoga compared to Buddhi Yoga or is Karma Yoga written as Buddhi Yoga? Both are similar. Both are same. But Bhakti Yoga, then Bhakti Yoga is Buddhi Yoga, na? हाँ. What Then is how yoga? is Karma- योग का मतलब क्या है? What is yoga mean? Union, connection with God. Yujate, to connect. What is karma yoga? To connect your activities with Krishna, it becomes karma yoga. So is it not bhakti yoga? Is it not buddhi yoga? Yeah, same. प्रभुपाद जी का स्पेशलिटी क्या है ना, प्रभुपाद ने सबको एक लेवल पे लाके रखा है। प्रपोर्ट्स का स्पेशलिटी है कर्म योगा, भक्ति योगा, बुद्धि योगा। प्रभुपाद ने सेम यूज किया, इंटरचेंजेबली यूज किया उसको काफी बार, है ना? एनीथिंग एल्स? No. ओके, टेक्स्ट नंबर 4. न कर्माणम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिं समाधिगच्छति. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. तो टेक्स्ट नंबर जो ये 4th है, अभी देखो क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, 3.3 3.4 के बीच में. तो बेसिकली इसमें ये आएगा कि हाउ प्रीमैच्योर रिनंसिएशन परफॉर्म बिफोर सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन एट द कर्म स्टेज विल नाइदर ब्रिंग प्यूरिफिकेशन नॉर लिबरेशन. मतलब बेसिकली प्रीमैच्योरली व्यक्ति को रिनाउंस नहीं करना चाहिए हमारे एक्टिविटीज,
काफी बार जब हम लोग भक्त बन जाते हैं, भक्त बनने के बाद हम इमीडिएटली चीजों को ड्रॉप कर देते हैं, है ना। जैसे मैं पर्सनली खुद के जीवन में देखता हूँ, व्हेन आई केम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब मैंने गीता कोर्स अटेंड किया था पहली बार, तो मैं जाके फैमिली को सबको बैठा दिया, मतलब समझो आप लोग कुछ पता नहीं है, मुझे रिसेंटली एक नया रिविलेशन हुआ है, बेटर नॉलेज मिला है, ये सब है ना मोह माया है, सारा दुनिया सबको छोड़ना है हमको, है ना। तो ये क्या हो जाता है, जिसने प्री मैच्योर रियलाइजेशन, हमको एक इनिशियल एकदम ऐसा बूस्ट मिल जाता है भक्ति में आने के बाद, इमीडिएटली ऊपर हम उठ जाते हैं भक्ति में आने से। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि नॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क, मतलब एक कर्म संन्यास, मतलब चीजों को छोड़ने से, कैन वन अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, नॉर बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन, है ना। तो परपोर्ट पढ़ेंगे अभी। The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, that is sannyas. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyas or retiring from fruitive activities, one at once become as good as Narayan. ये मायावादी लोगों का कंसेप्शन है, जिनके अंदर दे फॉलो कर्म संन्यास। उनका मतलब क्या होता है, उनका थॉट क्या होता है, ठीक है किसने संन्यास ले लिया मतलब नारायण बन गया, प्रॉपर लिख रहे ना, वो व्यक्ति नारायण बन गया, उनको कैसा लगता है। बट लॉर्ड कृष्णा डज नॉट अप्रूव दिस प्रिंसिपल। विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, संन्यास इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू सोशल ऑर्डर। अगर किसी ने प्री मैच्योर संन्यास ले लिया, अपने श्लोक सुना होगा ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि मेरा ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पाद एव कल्पते। इससे फिर उत्पाद होता है ना, ये उत्पाद क्रिएट करते हैं ऐसे लोग, इस तरह के लोग। On the other hand, if someone takes to transcendental service of the Lord, even without discharging the prescribed duty, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Swalpam api asya dharmasya rayate mohato bhayat. Even a slight performance of such principle enables one to overcome great difficulties. तो इसमें प्रोपाल इस्टेब्लिश कर रहे हैं हो बुद्धि योग और भक्ति योग इज बेटर देन सांख्य योग और एनी अदर योग। अब इंटरेस्टिंग देखेंगे ना, यहाँ पे ये सेक्शन का नाम क्या था, निष्काम कर्म योग है। प्रोपाल निष्काम कर्म की कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे, प्रोपाल डायरेक्ट टॉप मोस्ट चीज का बात कर रहे हैं, भक्ति योग का बात कर रहे हैं। प्रोपाल चाहते हैं कि हमको टॉप मोस्ट चीज मिले, उसमें हम लोग सेटल हो, देन we get settled with something which is very very lesser कम वैल्यू का, तो वो चाहते नहीं है। अब भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं कृष्ण कि भाई ये सब तो कोई व्यक्ति परफेक्शन नहीं कर सकता, या फिर कोई व्यक्ति रिएक्शन से छूट नहीं सकता, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या, व्हाट इज मेकिंग कृष्णा से दैट इज उसका आंसर कृष्णा अभी टेक्स्ट 3.5 में दे रहे। वो बोले जो सांख्य योग है ना, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल क्यों है, वाई सांख्य इज इम्प्रैक्टिकल, बिकॉज सोल इज एक्टिव, है ना। क्या हम लोग सोच सकते हैं जो हम सब लोग हैं यहाँ पे, है ना, राधा गोकुलानंद प्रभु है, या फिर ओजस्वी कृष्ण प्रभु है, गोविंद प्रभु है, या फिर हमारे ऋषि विश्वनाथ मित्र प्रभु है, साहिल प्रभु है ना, प्रथम से क्या नाम है ना, हाँ परम करुणा प्रभु। परम करुणा प्रभु है, या फिर प्रथमेश चव्हाण प्रभु है, ऋषिकेश पाटिल है, आदिनाथ है, अजय है ना। आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे पता नहीं कौन कौन उधर कोने में बैठे, कृष्ण प्रभु है ना। तो आपको क्या लगता है, क्या हम लोग इनएक्टिव है, आप लोग कितने समय इनएक्टिव बैठ सकते हैं, हाउ लॉन्ग वी कैन सिट इनएक्टिवली। तो इसलिए कृष्ण इज सेइंग इन टेक्स्ट 5, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। Everyone is forced to act helplessly
according to the qualities he has acquired from modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. एक मोमेंट के लिए कोई व्यक्ति शांत बैठ नहीं सकता है, कृष्ण बोल रहे हैं। कोई मोमेंट के लिए बैठ नहीं सकता, तो फिर कैसे आप बोलेंगे भाई कर्म संन्यास ले लो, सब कुछ छोड़ दो, रिनाउंस कर लो सारा चीज? इट्स नॉट पॉसिबल, यू नीड एक्टिव एंगेजमेंट, है ना। इसलिए वो आपके इसमें कहा था ना, परम दुष्ट निवर्तते, लास्ट टाइम ओजस्वी कृष्ण को जो उसको ये कर रहे थे, समराइज कर रहे थे, परम दृष्टा निवर्तते, हायर टेस्ट। व्हाई डू यू नीड हायर टेस्ट? बिकॉज हम लोग इनएक्टिव बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। वो बोर तभी हम लोग नहीं होंगे जब हम हमारे पास हायर टेस्ट है, वी कंटिन्यू विद द हायर टेस्ट एंड वी एंगेज इन सम सर्विसेज वेयर वी गेट सम हायर टेस्ट। चाहे आप लोगों को मृदंग में हायर टेस्ट आता है ना, फेस्टिवल में लीड करने में, सिंगिंग लीड करने में, कि मैं इसमें इसको हायर टेस्ट आता है ना। तो ये हायर टेस्ट हमको बचा के रखता है काफी बार, इसलिए हायर टेस्ट अगर लेंगे तो हमको हेल्प करेगा। बिकॉज वी कांट जस्ट सिट पीसफुली, एक जगह बैठना हमारे लिए एक ऑस्टेरिटी बन जाता है। परपोर्ट में प्रॉपर लिख रहे हैं इसमें, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ बट द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। ऐसे नहीं कि व्यक्ति कोई बद्ध अवस्था में वही बस एक्टिव रहता है, सोल एकदम इनएक्टिव रहता है, ऐसा नहीं है। ये सोल का स्वभाव है कि एक्टिव रहना, वो शांत नहीं बैठ सकता। ही जस्ट वांट टू बी एंगेज इन सम एक्टिविटी और अदर। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट सोल द मटेरियल बॉडी कैनॉट मूव। The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul, which is always active and cannot stop even for a moment. As such, the spirit soul has to be engaged in the good work of Krishna consciousness. Otherwise, it will be engaged in occupations dictated by illusory energy. In contact with material energy, the spirit soul acquires material modes. And to purify the souls from such affinities, it is necessary to engage in prescribed duties enjoined इन द शास्त्र। तो हम लोग सेवा में क्यों एंगेज करते हैं खुद को? ताकि हम लोग, व्हाई डू वी एंगेज इन सर्विस? बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू प्यूरिफाई। हम उसमें प्यूरिफाई हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। द मोर वी गेट प्यूरिफाइड, और जब प्यूरिफाई होने का, व्हेन वी गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो वापस सर्विस में हमारा एक नेचुरल इटर्नल एंगेजमेंट हो जाएगा। बट अभी हमको एंगेजमेंट चाहिए फॉर प्यूरिफिकेशन। अगर हम प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वी मे एंड अप इन डूइंग रॉन्ग एक्टिविटीज। If you don't do Krishna conscious activities, you may end up in doing wrong activities. ऐसे पे प्रभुपाद लिख रहे हैं purport में। But if the soul is engaged in the natural function of Krishna consciousness, whatever he is able to do is good for him. Bhagavatam that affirms, "Tvaktva swadharmam charanam bhujam harer bhajan apakko athapatet to yadi yatra ka va bhadram abhut amushyakim ko varta apto bhajatam swadharmata." If someone takes to Krishna consciousness, even though he may not follow the prescribed duties in the Shastras or execute devotional service properly, and even though he may fall down from the standard, there is no loss or evil for him. But if he carries out all the induction of purification in the Shastras, what will it avail him if he is not Krishna conscious? Basically, अभी कहा गया है कि भले भक्ति करते हैं, मतलब पाथ में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि he may fall apart, वो गिर सकता है पाथ में। बट फिर अगर कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ के बाकी चीजों में लगा है शास्त्र के हिसाब से, अगर वो बार उसके साथ सारा शास्त्र का दिए विधियों को पालन कर रहा है, बट एक ही चीज नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसे चीज का क्या फायदा? कृष्ण कॉन्शियस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। So the purificatory process necessary for reaching this point of Krishna consciousness. Therefore, sannyas or any purificatory process is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness, without which everything is considered a failure. तो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। संन्यास हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, त्रस्त हो, ब्रह्मास्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो, हमारा गोल है टू बी कृष्ण कॉन्शियस। और इसीलिए आगे चल के फिर कृष्णा बोलेंगे अर्जुन को वापस से 3.6 में कि ऐसा व्यक्ति जो एकदम अनफॉर्चुनेट व्यक्ति, कृष्ण उसको अनफॉर्चुनेट रिनंसिएट बोलते हैं और उसको कंडेम करते हैं कि जो अनफॉर्चुनेट ऐसा व्यक्ति जो रिनंसिएशन किया है, जो मिथ्याचारी है, प्रिटेंडर है, इसने सफिशिएंटली प्यूरिफिकेशन नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण क्या बोलते देखते हैं?
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थम विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते. So one who restrains the sense of action but whose mind dwells on the sense object certainly deludes himself and is called a pretender. ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना. क्या मैं प्रिटेंडर हूं? बाहरी रूप से तिलक पहना है, कंठी माला पहना है, धोती कुर्ता पहना है, पर अंदर के अंदर सारा मजा मस्ती करने के थॉट्स आ रहे हैं. बाहर से माता जी बोल रहे हैं पर अंदर से एंजॉय करने का मन आ रहा है ना. तो कृष्ण वो बात को कंडेम कर रहे हैं. कृष्ण बोल रहे वन शुड नॉट एंजॉय वंस थॉट्स. वन हु रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस ऑफ एक्शन बट हुज माइंड डिवेल्स ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट. उसका माइंड वो चीज पे है, बाहरी रूप से उसने तो उसको तोड़ दिया है. तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण क्या बोलना चाहिए? मिथ्याचार से उच्चते, मिथ्याचारी बोलना चाहिए. मतलब क्या? प्रिटेंडर बोलना चाहिए. प्रपोर्ट में लिखते हैं देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बट मेक अ शो ऑफ मेडिटेशन while actually dwelling within the mind upon sense enjoyment. मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, सब कुछ बंद कर रहे हैं, बॉडी की प्रोसेस, पर मन के अंदर सारा एंजॉयमेंट चल रहा है. मन में एंजॉय कर रहे हैं सारी चीजों को. Such pretenders may also speak on dry philosophy in order to bluff persecuted followers. वो कभी बहुत अच्छा फिलोसफी बोल लेंगे बात करते करते, है ना. But if one follows the rules and regulation of this particular status, he can make gradual process in purifying his existence. But he who makes a show of being a yogi while actually searching for objects of sense gratification must be called the greatest cheater. Even though he sometimes speaks philosophy, भले वो बोलते हो अच्छा फिलोसफी बोले पर मन के अंदर अगर उसका सब चल रहा है, that means he is a pretender, मिथ्याचारी है. His knowledge has no value, प्रॉपर लिख रहे हैं, because the effects of such sinful man's knowledge are taken away by the illusory energy of the Lord. Such a pretender's mind is always impure and therefore his show of yogic meditation has no value whatsoever. समझ रहे क्या चल रहा है हमारा? डजंट मेक सेंस. हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? प्रभुपाद निष्काम कर्म योग के माध्यम से प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भाई व्यक्ति को वन हैज टू टेक टू अनर्थ निवृत्ति. एक व्यक्ति चीट नहीं कर सकता है बाह्य रूप से, बस चीजों को छोड़ के अंदर से सारा एंजॉय कर रहा है. दैट्स नॉट अलाउड. कृष्ण ऐसे ही. इसीलिए नाउ कृष्ण कंटिन्यू द सेम थॉट अहेड. हरे और कृष्ण प्रभु, हाँ, एक क्वेश्चन था. यस प्रो, अजय प्रो. या अभी जैसे हम प्रिटेंडर की बात कर रहे हैं ना, तो Yeah. उसमें बोला है कि जो सेंस एंजॉयमेंट में लगा हुआ है बट ऊपर से शो कर रहा है जैसे भक्ति का एंड ऑल. भागवतम 11th कैंटो 20th चैप्टर आल्सो सेज समथिंग सिमिलर कि अगर मतलब कृष्णा ही बोलते हैं उद्धव को कि अगर कोई मेरी भक्ति में लगा हुआ है और वो सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इसमें उसका फॉल्ट नहीं समझना चाहिए. तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए. नहीं, डजंट सीम्स टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी बिकॉज यहाँ पे जो कृष्ण जो चर्चा कर रहे हैं एक कॉन्टेक्स्ट में बढ़ रहे आगे वो, है ना. वी जस्ट कांट सिंगल आउट दिस श्लोक आउट. जैसे आप देखेंगे अगले श्लोक में कृष्ण विल टॉक अबाउट a detached householder. Sorry, he'll talk about a sincere, dutiful householder is better than a attached or मिथ्याचारी सन्यासी. So Krishna is appreciating now sincere, dutiful. इसलिए परपोर्ट में एक अच्छा वाक्य प्रभुपाद लिखे जो लास्ट स्टेटमेंट देखो आप 7th का परपोर्ट का. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. So, अभी आपने जैसे बोला कि ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये हमारे कंटेक्स्ट में नहीं आता है बिकॉज इसमें एक उसके मिथ्याचारी सन्यासी की बात हो रही है, राइट? नहीं, मिथ्याचारी कहीं पे भी हो सकता है, मिथ्याचारी गृहस्थ से भी हो सकता है, मिथ्याचारी कोई भी हो सकता है. बट ही सेइंग सो व्हेन ही सेइंग रिनंसिएशन, वो समझना चाहिए रिनंसिएशन का मतलब एक है सन्यासी भी है, एक है जो व्यक्ति चीजों को छोड़ रहा है, प्री मैच्योरली छोड़ रहा है. तो बेसिकली प्रिंसिपल ये पे कहा गया चीजों को प्री मैच्योरली मत छोड़ो.
don't give up things prematurely. Getting what you say, what I'm saying, Tribal? Yeah, Prabhuji. Yeah. So let's not go for prematurely giving up things. मुझे बोलो मिथ्याचार किसको करना पड़ता है? जिसको मतलब लोगों के सामने अच्छा बनना हो हाँ। और साइड में थोड़ा अपना सेंस एंजॉयमेंट भी करना हो, और जिसका सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं है, हाँ करेक्ट, सो मतलब समहाउ कॉजलेस मर्सी के कारण उसको बहुत चीजें आसानी से मिल गई है यस, ना? जैसे मैंने एक बार छोटा ऑब्जर्वेशन है, से जो डिवोटी कम्युनिटी में हम देख सकते हैं कि जो डिवोटी फैमिली में जिसका बर्थ होता है ना, ऐसों के केस में जल्दी क्या देखा गया ना कि ऐसे लोगों को पेरेंट्स काफी बार बहुत जल्दी चीजों से एक्सपोज कर देते हैं, भाई तुमको जब करना पड़ेगा, तुमको आरती में अटेंड करो, प्रणाम करो, हरे कृष्णा बोलो, ये सब करो। तो होता क्या है ना, काफी बार वो सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं होता है ना इंटर का, तो उसके कारण वो व्यक्ति क्या करता है, उसको बहुत लाइटली ले लेता है, चीपली ले लेता है, और उसको यस, यस, होता है। वेरी या ट्रू, फिर या फिर ऐसे भी होता है कि वो व्यक्ति बाहरी रूप से दिखाता है कि भाई मैं डिवोटिस को देखकर हरे कृष्णा करेगा, उनसे अच्छा बात करेगा, लेकिन अंदर के अंदर पर इंजॉय करते रहेगा। तो सफिशिएंट प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसको बहुत जल्दी चीजें मिल गई है, वो केस में तो ये दिस अप्लाइज टू एवरीवन, एंड उसी तरह से अप्लाइज टू सन्यासी आल्सो, इट अप्लाइज टू गृहस्थ आल्सो। दैट्स व्हाई अगले श्लोक में टेक्स्ट नंबर 7 में प्रभुपाद बोलेंगे यहाँ पे, और कृष्ण विल टॉक अबाउट हाउ सिंसियर ब्यूटीफुल हाउस होल्डर इज बेटर देन अटैच्ड और मिथ्याचारी सन्यासी, है ना? यस, ओके प्रभुजी, थैंक यू। तो टेक्स्ट 7 में यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियमा निय, नियर नियमया भये अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। तो क्या है, कृष्ण बोल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इफ अ सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस बाय माइंड एंड बिगिंस कर्म योगा। अब देखो ये किसका क्वेश्चन था, ऋषिकेश का था, किसका था? रूपा देखो, Question? कर्मयोग और कृष्ण कौन से एक साथ यूज कर रहे वर्ड, देखा? Yes, yes. इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। एंड बिगिंस कर्मयोगा इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट, ही इज बाय फार सुपीरियर। So instead of becoming a pseudo transcendentalist, proper लिखे purport में, for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter the kingdom of God. The prime स्वार्थ गति, इस स्वार्थ गति वर्ड कहीं आता है क्या? आप लोगों ने कभी सुना है इससे पहले? स्वार्थ गतिम है विष्णु, कौन किसको बोल रहा है? स्वार्थ गतिम है विष्णु, अजय ब्रो? नो आइडिया प्रभुजी। अरे बहुत फेमस लोग है प्रहलाद महाराज का। नो आइडिया प्रभुजी, आई डिडंट रीड। एक मिनट, मैं उसका मैं रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये मिल गया। The seventh canto, fifth chapter, third verse. नते विदुम स्वार्थ स्वार्थ गतिम है विष्णु दुराश्राय बहिर्थ मानिना अदान। अरे इधर मिक्स हो गया शायद से कुछ, तो ये हाँ, नते विदुम स्वार्थ गतिम है विष्णु दुराश्राय बहिर्थ मानिना अंध यथांधे रूपगीयमानास तेपीश तंत्रम उरुगाम निबद्ध, है ना? तो ये यहाँ पे स्वार्थ गतिम का अर्थ है जो हमारा अल्टीमेट गोल है जीवन का। हमारा स्वार्थ क्या? सबसे बड़ा स्वार्थ है भगवान श्री विष्णु का सेवा, भगवान श्री विष्णु का शरणागति भक्ति, तो हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ वो है। प्रभु उसी को तात्पर्य में लिख रहे हैं दैट द प्राइम स्वार्थ गति और गोल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज टू रीच विष्णु। ये 7th कैंटो 5th चैप्टर से श्लोक आता है। The whole institution of Varna and Ashrama is designed to help us reach the goal, this goal of life.
A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show-bottle spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making of living. तो हमको what if bhakti you are performing, one has to become sincere practitioners of that bhakti. बाहर से एक अंदर से एक नहीं करना चाहिए हमको, है ना. तो अगर हम इस तरह से हैं, then we have some chance of progressing ahead in the process of Krishna consciousness. Now text 8 जो है उसका काफी कनेक्शन मिलता है हमारे टेक्स्ट नंबर 2.47 से. कर्मण्यवाधिकार रस्ते, वो श्लोक से उसका काफी कनेक्शन है. So in the text 3.8, Krishna is recommending Arjun that his prescribed duty as a Kshatriya is fighting or work and not renunciation. हे अर्जुन, कृष्ण बोल रहे तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय के हिसाब से फाइट करना है, रिनंसिएशन आपके लिए नहीं है ना. इसलिए कृष्ण बोलेंगे कि भाई वन कैन नॉट इवन मेंटेन वन फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क. कोई बोलेगा मैं कुछ वर्क नहीं करूंगा, तुम्हारा बॉडी कैसे मेंटेन होगा. कभी मराठी में कहावत है ना, असेल हरी तर दिल खाटल्यावरी. असेल हरी तर देणार खाटल्यावरी. मी माझा I will not do my work and let if Lord is there, he can bring things to me on my bed nicely, है ना. तो यार कृष्ण ये सेइंग कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट वर्क व्यक्ति तो उसको तो आपका बेसिक चीजें नहीं मिलेगा. इसलिए टेक्स्ट 8 में कृष्ण बोल रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण. Perform prescribed duties, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work, है ना. प्रभुपाद इसमें दो एग्जाम्पल देते हैं, मिथ्याचारी लोगों के दो एग्जाम्पल प्रभुपाद इसमें कोट कर रहे हैं परपोर्ट में. एक है सुडो मेडिटेटर्स और दूसरे हैं प्रोफेशनल मैन. प्रभुपाद राइटिंग देयर आर मेनी सुडो मेडिटेटर्स who misrepresent themselves as belonging to the high parentage, and great professional men, ये दूसरा कैटेगरी प्रभुपाद बोल रहे हैं, who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjun to become a pretender. Rather, Lord desired that Arjun perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjun was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Such activity gradually cleanses the heart of a mundane man and free him from material contamination. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scripture. मतलब कोई व्यक्ति रिनाउंसिएशन क्यों कर रहा है, मेरा मेंटेनेंस में हो जाएगा, उसके लिए वो चीज शास्त्र ने अलाउ नहीं किया है. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should not be given up capriciously, without purification of materialistic propensities. Anyone who is in the material world is certainly possessed of the impure propensity for lording it over material nature, or in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without doing so through prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. One should not become parasite for the society. लिख रहे हैं रिपोर्ट में. And that's why he'll say now, आप ठीक है, आपको लग रहा है ये वर्क आपको बहुत बर्डनसम लगा है वर्क. You see work as यज्ञ. टेक्स्ट 9 में कृष्णा विल से भाई ठीक है, आपसे वर्क हो नहीं पा रहा है, आपसे आपका जॉब हो नहीं पा रहा है, आपसे आपका एजुकेशन हो नहीं पा रहा है, आप ये सब चीजों को यज्ञ के रूप में देखो. सो वर्क डन एज सैक्रिफाइस
और यज्ञ for satisfaction of Vishnu is a means of liberation from all bondage. Prabhupada इसमें लिखेंगे. So you see your work or you connect your work as a sacrifice to Lord Vishnu, Lord Krishna. ये पॉइंट पे कर्म बिकम्स कर्म योग. याद रखो आप लोग, ये पॉइंट पे कर्म इज बिकमिंग कर्म योग. यज्ञार्थ टेक्स्ट नहीं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. भगवान बोल रहे हैं कि work done as sacrifice for Vishnu has to perform, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. Can someone read the purport? Since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that the purpose can be fulfilled. Yajna means Lord Vishnu or sacrificial performances. All sacrificial performances also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas enjoying Yajnyo Vai Vishnu. In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajnas or directly serves Lord Vishnu. Krishna consciousness is therefore performance of yajna as prescribed in this verse. The Varnashrama institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Therefore, one has to work for satisfaction of Vishnu. Any other work done in the material world will cause bondage. For both good and evil, work has their reaction, and any reaction binds the performer. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu. And while performing such activities, one is in liberated stage. This is a great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna and under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjun had the opportunity to work. Okay, nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. इसका मतलब कोई बोलेगा मुझे स्टेटमेंट का ये वाले, nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for satisfaction of Krishna. एग्जाम्पल कोई दे सकता है, हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं अपने जीवन में? Propagation of children for service of Krishna or not for sense gratification. Wow, very nice. Anything else? Any other example? Any other example? गोमन प्रभु. जो भी हम लोग खा रहे हैं, whatever we eat should be offered to the Lord. इसको application है. We should eat प्रसाद. भोग ये भगवान के लिए होता है, प्रसाद हमारे लिए होता है. Yes. तो बस भाई वाडीलाल को कुछ अच्छा मिल रहा है, आइसक्रीम है ना, क्या क्या अलग अलग ब्रांड, सबको तो आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप लोग मेरे में एडवांस है. तो थिंक प्रसाद का मतलब क्या है? विच इज कुक्ड फॉर द लॉर्ड, offered to the Lord, and then we honor it. One should try as much as possible to eat prasad, है ना, ये इसका और एक एग्जाम्पल है. और कुछ? कुछ निकाल ले क्या आप लोग? क्या है प्रसाद? अय्यप्पा का प्रसाद है क्या? पायसम.
पायसम पायसम, ठीक है, वेरी नाइस. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to the transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो इसीलिए मैं आपको अभी एक समरी दूंगा जिसके बाद हम लोग एंड करेंगे आज का क्लास. इस समरी में आपको दिखाऊंगा व्हाट इज दिस योगा लेटर जो हमने अब तक इसमें देखा. तो इसमें एक योगा लेटर हम देखेंगे तो वो समझेगा कि क्या एग्जैक्टली लेडर मतलब क्या है, सीढ़ी कैसे है, और कैसे ये सीढ़ी एक भक्त के लिए ग्रेजुअली इट कैन बिकम एलिवेटर, एक लिफ्ट का काम कर सकता है. तो इसलिए लेट अस सी इन फ्यू मिनट्स. आपको दिख रहा है मेरे सामने आपके स्क्रीन पे? इज इट विजिबल? झूम झूम करा थोड़ा. कैसे जूम होता है? एनलर्ज करा. हाँ हाँ, यस 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 प्रो जी दिखते हैं. तो ये जो हमने अब तक का देखा है तो ये पूरा उसका समरी है ना. तो ये सारे स्टेजेस है. एक लैडर, एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जिना, उसके एक एक स्टेप इस तरह से. सबसे पहले कर्मकांड है, कर्मकांड के बाद सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और फाइनली फिर भक्ति योग. ये उसका स्टेप्स है उसके. तो कर्मकांड में क्या होता है? कर्मकांड में व्यक्ति को एक, जैसे वेदास दे टॉक अबाउट लॉट ऑफ कर्मकांड, ये करोगे तो ये मिलेगा, है ना. ठीक है, किसी को गलत चीज खाने की इच्छा है, उसको उसको एक प्रक्रिया बोली गई, वो ऐसे ऐसे करके जानवर को मारो, उसको ऐसे करके खाओ. तो इट एनकरेज रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना. मेंट टू ब्रिंग जनरल मास ऑफ पीपल टू द प्लेटफॉर्म रिलीजियोसिटी. कुछ तो रिलीजियस बन जाएगा. तो स्पिरिचुअल अलग होता है, रिलीजियस अलग होता है. सो ISKCON इज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, एंड अदर रिलीजन्स व्हेन वी से दे आर रिलीजियस मूवमेंट्स. तो रिलीजियस में क्या होता है, लोग झगड़ते हो. स्पिरिचुअल में क्या होता है, स्पिरिट पे ज्यादा काम होता है. तो हाउ डज दिस नाउ कर्मकांड प्यूरिफाई द प्रैक्टिशनर इन मेनी वेज. Regulation brings detachment from the which fosters knowledge. Gradually, Vedas expose him to Jnana and Upasana section. The result of Jnana Yajna gives him faith in Shastras, motivate him to associate with Brahmanas who gives higher knowledge. ये फायदा होता है जब कोई व्यक्ति एक कर्मकांड के स्टेज पे है, उसको इस तरह से फायदा आगे होता है. एंड ग्रेजुअली फिर उससे क्या होगा, समझेगा ये पूरा दुनिया कैसा है, ये दुनिया या महफिल कोई काम की नहीं है ना, ऐसा बोलना चालू करेगा फिर व्यक्ति, है ना. और फिर एंड मेक्स ट्रांसेंडेंस एज इज गोल. उसको पता है कि ठीक है, मुझे कुछ तो दिव्य चीज करना है अपने जीवन में, जो मैं कर रहा हूँ उससे ऊपर उठना है. नाउ देन ही कम्स टू सेकंड स्टेज व्हिच इज कॉल्ड एज सकाम कर्मयोग. तो सकाम कर्मयोग में और कर्मकांड में फर्क क्या होता है? सकाम कर्मयोग में उसकी कामना है, सकाम, उसकी इच्छाएं हैं बहुत सारी, पर उन्होंने सारी इच्छाओं को भगवान से कनेक्ट किया है. आज भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग पिज्जा खाएंगे बना के घर पे, है ना. या फिर मेरे को एक्चुअली मुझे इच्छा खाना है पिज्जा, कि मैं उसको भगवान से कनेक्ट कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड सकाम कर्मयोग. या फिर मुझे भिंडी की सब्जी अच्छा लगता है तो मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगा. किसके लिए बनाऊंगा? मेरे लिए बनाऊंगा, पर मैं उसको भगवान को ऑफर करूंगा. दैट इज मच बेटर. एक सेकंड स्टेज है सकाम कर्मयोग, है ना. तो इसमें अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट्स टू रिनाउंस फ्रूट्स ऑफ लेबर, बट अटैचमेंट टू मटेरियल डिजायर्स इज स्टिल लिंगर. उसका अभी भी इच्छा है, खुद को भोग करने का भी इच्छा है उसमें, पर उसको भगवान को पिक्चर में लेके आया उसने. इतना फर्क है. ये अगला स्टेप जो है उसका सकाम कर्मयोग के आगे का, दैट इज निष्काम कर्मयोग, है ना. वो क्या बोलेगा, ठीक है एक्चुअली मुझे आज हम कुकिंग करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अच्छा लगा इसलिए और उसका प्रसाद उसको ग्रहण करेगा. सकाम कर्मयोग में क्या हो रहा है, मेरे लिए बनाना है लेकिन मैं उसको डाउटेल कर रहा हूँ, भगवान को ऑफर करके खा रहा हूँ. अभी अभी मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ और फिर उसको खा रहा हूँ. दैट इज निष्काम कर्मयोग. मुझे मैं भाई भले मैं पिज्जा बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बनाने के उसको बांट दूंगा बाकी भक्तों को कि भाई प्रभु आपके लिए मैंने भगवान के लिए पिज्जा बनाया था, आप उसको टेस्ट कीजिए,
निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग क्या है? अगला स्टेज का प्लेटफॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, डिटैच फ्रॉम एक्शन एंड फ्रूट्स ऑफ एक्शन। उसको मतलब भाई वो अटैच नहीं, आप बोलो मैं ठीक है, मैं जाके थोड़ा टॉयलेट क्लीनिंग कर लूं, वो भी चलेगा। आप बोलेंगे थोड़ा कुकिंग कर लूं, वो भी चलेगा। आप जैसे बोलेंगे एक्शन से डिटैच है और उसके फल से भी डिटैच है, ऐसा ज्ञान योग के स्तर पे, है ना। और फिर इसके बाद जब वो और उसका प्रगति होता है, देन ही कम्स टू अष्टांग योगा स्टेज, वेरी वेरी अचीव बाय व्हेन न्याय योग एलिवेट्स टू द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन। और जो आखिरी स्टेज है इसका, दैट इज भक्ति योग, कैन परमिएट एनी ऑफ द स्टेजेस मेंशन अबव other than karma kind, but generally does not fully manifest therefore the deep realization evolved in the ज्ञानिस्ट। तो इस तरह से व्यक्ति अल्टीमेटली भक्ति योग की स्टेज पे आता है। इसका थोड़ा और एक एक्सटेंड वर्जन दिखा है। सबसे बड़ी बिगिन एनिमल लाइफ, सबसे नीचे एनिमल लाइफ है, मनुष्य जीवन, फिर हम मनुष्य बन जाते हैं, फिर कर्मकांड करते हैं, फिर सकाम कर्मयोग, फिर फ्रूट्स ऑफ वर्क, फेम और मटेरियल एंजॉयमेंट्स, कर्मी लोग इसमें खास करके आते हैं। फिर निष्काम कर्मयोग, भगवान कृष्ण के काम चालू करते हैं। फिर ज्ञान योग है ना, जिसमें ज्ञान अर्जित करते हैं और हमारा सारा भौतिक चीजें कम हो जाता है। देन इज अष्टांग योग, और फाइनली भक्ति योग। हाँ, तो उसमें व्यक्ति कैसे डाइवर्ट हो सकता है? एक अष्टांग योगी अपने शक्तियों से डाइवर्ट हो सकता है, उसके बहुत सारे उसको सिद्धि मिल जाती है, तो उससे वो डाइवर्ट होकर भक्ति योग के पाथ को छोड़ सकता है। ज्ञान योगी व्यक्ति को बहुत ज्ञान हो जाता है, ज्ञान से उसको बहुत ज्यादा ईगो हो जाता है, उससे वो डाइवर्ट हो सकता है ना। इसका और एक प्रोग्रेसिव योगा लेवल एडर क्या है? एनिमल लाइफ, इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर कर्मकांड में क्या है? रेगुलेशन आ गया, अभी रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है। सकाम कर्मकांड में क्या है? कर्मयोग में क्या है? डिवोटीज विद मटेरियल डिजायर्स या सेल्फिश, और फिर भगवान के लिए कर रहे हैं। निष्काम कर्मयोग में क्या है? डिवोटीज विद नो डिजायर्स फॉर पर्सनल इंटरेस्ट या सेल्फलेस। धीरे धीरे करके भाव भक्ति, प्रिय भक्ति के स्तर पे फिर व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होता है। ये तीनों लैडर्स का एक कंपेरिजन। एक है इसमें एक्सटेंडेड एक्सप्रेस एलिवेटर ऑफ भक्ति योग। भक्ति में जैसे व्यक्ति को भक्तों का संग मिल जाता है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति करके शुद्ध भक्ति उसको मिल जाती है। पर एक नॉर्मल व्यक्ति को सारे प्रोसेस से उसको जाना पड़ता है। ये है समरी, सेक्शन नंबर 2 ऑफ थर्ड चैप्टर, विच वाज फ्रॉम 3.3 से लेकर 3.10 तक। इससे आगे फिर जो चर्चा होगा 3.10 से 16 के बीच में, फ्रॉम कर्मकांड टू कर्मयोग, ये परिवर्तन कैसे होता है, इसमें चर्चा होगा। तो शैल वी स्टॉप हियर? Yes. आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप लोग इतने उत्साह से बैठे रहे, इंटरनेट बीच में जाता आता रहा, बट आप लोगों का उत्साह देख के मुझे उत्साह है। और जैसे मैं बोल रहा था कि आप लोग के संग में मैं लालयित रहता हूँ, कब मुझे आप लोग का संग मिले और मैं कुछ आप लोग से चर्चा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छा प्रसाद लीजिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं आप लोग को देने के लिए, मैं जैसे अभी घूम के आया हूँ। हम लोग पटना गए थे, और अम्बा घाट करके जगह वहां पे गए थे। रिकॉर्डिंग हो गया, क्लास हो गया ना? आवाज नहीं येते? Yes, yes, प्रभु झाले रे पण. रिकॉर्डिंग बंद केली? चालू आहे रिकॉर्डिंग? मला काही बोलायचं रेकॉर्डिंग मध्ये नाही, मला नाही टाकायचं, त्यासाठी म्हटलं.